ہم نے آٹو پالیسی کا اعلان کیا تھا کہ 850 سی سی کی گاڑی جو ہے اس میں ہم ٹیکس ریڈیوس کریں گے تاکہ ان کی قیمتیں کم ہو. ہم نے 800 سی سی کو 1000 سی سی تک کر دیا ہے. یہاں بڑی بات ہوئی کہ میڈیکل بلز کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ لگا ہے, ہم نے واپس لے لیا. دودھ اور دیگر مصنوعات پر جو 10 سے 17% ٹیکس بڑھا تھا ہم نے اس کو واپس لے لیا. سرکاری ملازم کی پروویڈنٹ فنڈ پہ آمدنی پہ ٹیکس ہم نے واپس لے لیا. حکومت کا دودھ, دہی, ڈیری مصنوعات, آٹے اور اس سے منسلک اشیاء پر عائد ٹیکس واپس لینے کا اعلان. وزیر خزانہ شوکت ترین کا وفاقی بجٹ پر بحث سمیٹتے ہوئے اعلان. شوکت ترین نے کہا کہ انٹرنیٹ اور ایس ایم ایس پر بھی کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. 1000 سی سی تک گاڑیوں پر ٹیکس میں کمی اور میری گاڑی اسکیم متعارف کرانے کا بھی اعلان. سرکاری ملازمین کے میڈیکل پر عائد ٹیکس بھی واپس لے لیا گیا. پراپرٹی ٹیکس کی شرح 35 سے کم کر کے 20% کر دی گئی. مڈل مین کا کردار ختم کرنے کے لیے ملک میں ایگری مالز کا جال بچھائیں گے. ایس ایم ای سیکٹر کو بڑھاوا دینے کے لیے 9% شرح پر 100 ارب روپے کے قرضے دیے جائیں گے. IMF نے تو ہمیں کہا تھا کہ آپ 700 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائیں. یہ تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا یہ نہیں لگے گا, یہ کوئرسو ہے, دس از بیسیکلی ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ آور اکانومی. ہم ٹیکس بیس کو وائڈن کریں گے, جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو لے کے آئیں گے. دیٹ از پروگریسو. شوکت ترین آئی ایم ایف کے سامنے ڈٹ گئے. کہتے ہیں آئی ایم ایف 700 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانا چاہتا تھا. میں اس بات کے سامنے کھڑا ہو گیا. کوشش ہے ٹیکس لگانے کی بجائے ٹیکس دہندگان کو بڑھایا جائے. 1.5 کروڑ ایسے لوگوں کی لسٹ آ چکی ہے جو ٹیکس نہیں دیتے. ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف تھرڈ پارٹی کی مدد لیں گے. اگر کوئی بہت بڑا ڈیفالٹر ہے اور وہ بات نہیں مانتا تو ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے. وفاقی وزیر نے مزید کہا برآمدات بڑھانے کے لیے اسپیشل اکنامک زون بنا رہے ہیں. چین سے انڈسٹری پاکستان منتقل کرنے کے لیے بات چیت بھی چل رہی ہے. آٹے کے بحران کا خطرہ ٹل گیا. وزیر خزانہ کی جانب سے ٹیکس ختم کرنے کے اعلانات پر آٹا مل مالکان نے ملک گیر ہڑتال ختم کر دی. گندم کی دھلائی کا آغاز, پہلے سے تیار شدہ آٹے کی مارکیٹ میں سپلائی بھی بحال ہو گئی. پنجاب کے سہولت بازاروں میں سستے آٹے کی سپلائی بھی دوبارہ شروع ہو گئی. چیئرمین فلار ملز ایسوسی ایشن ہڑتال ختم کرنے کا اعلان باقاعدہ پریس کانفرنس میں کریں گے. قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث جاری. شاہد خاقان عباسی کا وزیر خزانہ سے سرمایہ کاروں کی گرفتاری کا آپشن ختم کرنے کا مطالبہ. کہا پاکستان میں سرمایہ کاروں کی لائنیں نہیں لگی ہوئیں. ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ اور کھانے پینے کی اشیاء پر اضافی GST بھی ختم کیا جائے. رانا تنویر نے کہا ایف بی آر کا رویہ ٹیکس دہندگان کے ساتھ ٹھیک نہیں. فاٹا میں صنعتوں کو ٹیکس چھوٹ پر نظر ثانی کی جائے. مریم اورنگزیب نے کہا فلم انڈسٹری پر ود ہولڈنگ ٹیکس ختم. تعلیم کے لیے ختم کیے گئے فنڈز بحال کیے جائیں. ایوان میں سبھی شہداء کے لیے فاتح خوانی بھی ہوئی. سندھ اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا بجٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ضمنی بجٹ کے مطالبات زر پیش کیے. اپوزیشن کی طرف سے کٹوتی کی کوئی تحریک جمع نہیں کرائی گئی. بجٹ منظوری کے موقع پر اپوزیشن اراکین کی ہنگامہ آرائی, نعرے بھی لگائے گئے. ایم کے اراکین پلے کارڈز اٹھا کر ایوان میں پہنچے. اسپیکر آغا سراج درانی نے اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا. سندھ اسمبلی میں کرپشن زدہ چہرے سامنے آ گئے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو ہر چیز کا حساب دینا ہوگا. اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کی میڈیا سے گفتگو. کہا یہ جمہوریت کے پیروکار بنتے ہیں. یہ کہاں کی جمہوریت ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما کنور نوید جمیل بولے ہم پہلے ہی سندھ کا بجٹ مسترد کر چکے ہیں. کراچی کے لیے کوئی رقم مختص نہیں کی گئی. سارا پیسہ کراچی کے باہر خرچ ہوتا ہے. اب ہم اس احتجاج کو سڑکوں پر لائیں گے. اپوزیشن نے بجٹ میں کوئی دلچسپی نہیں لی. صوبائی وزراء کا اپوزیشن کی نیوز کانفرنس پر رد عمل. وزیر اطلاعات سندھ سید ناصر شاہ نے کہا کہ اپوزیشن نے بجٹ پر کٹوتی کی کوئی تحریک جمع نہیں کرائی. صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی بولے نااہل اپوزیشن کے شکر گزار ہیں کہ ان کی وجہ سے بجٹ جلد منظور ہو گیا.
5 जवान वतन पर कुर्बान। सिब्बी में दहशत गर्दों का हमला, FC बलूचिस्तान के 5 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक संगन में दहशत गर्दों ने FC की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में दहशत गर्दों को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। कार्रवाई के दौरान लकी मरवत के हवालदार जफर अली खान, लांस नाइक हदायतुल्ला, बखर के लांस नाइक नासिर अब्बास, नसीराबाद के लांस नाइक बशीर अहमद और लकी मरवत के सिपाही नूरुल्लाह शहीद हो गए। वजीर दाखिला शेख रशीद की दहशत गर्दी की मजम्मत, कहा रियासत पूरी ताकत से दहशत गर्दों का मुकाबला करेगी। मसनूई बहरान पैदा करके पैसा बनाने वाली पेट्रोलियम कंपनियां पकड़ में आ गईं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम की मसनूई बहरान पैदा करने वाली कंपनियों से रिकवरी का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत की मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी हुक्म। 3 माह में अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। जस्टिस कासिम खान ने अपने फैसले में कहा कि वफाकी हुकूमत ऑयल स्टोरेज की कम से कम मिकदार को बरकरार रखने की पाबंद होगी। वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम कमीशन की तजावीज़ पर अमल दरामद भी यकीनी बनाए। लाहौर धमाके की तहकीकात जारी। कराची के इलाके महमूदाबाद में पीटर पॉल डेविड के घर सिक्योरिटी इदारों का छापा। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम 1.5 माह पहले बहरीन से कराची पहुंचा। लाहौर में मुख्तलिफ अफराद से राबतों के शवाहिद भी मिले। पीटर पॉल डेविड बहरीन में स्क्रैप और होटल का कारोबार करता है। उधर धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का फोरेंसिक तज्जिया कर लिया गया। तीसरे रोज भी जाए वकुआ पर आम अफराद का दाखिला बंद। टीमें तबाह होने वाले घरों के नुकसान का तखमीना लगाने में मसरूफ। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या निकल जाएगा, फेटफ की जानिब से रात तक ऐलान मुतवक्के। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक एशिया पैसिफिक ग्रुप के 27 में से 26 नुकात पर अमल दरामद मुकम्मल। FATF का पाकिस्तान के इंसदाद टेरर फाइनेंसिंग इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान ने फेटफ को मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात पर मबनी रिपोर्ट पेश की। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मजीद इक़दामात जनवरी 2022 तक मुकम्मल करना होंगे। पाकिस्तान फेटफ के APG और ICRG की सिफारिशात पर अमल दरामद कर रहा है। कोहाट में मेडिकल तालबा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम मुजाहिदुल्लाह को सजाए मौत का हुक्म जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पेशावर ने 2 मुलजिमान सदीकुल्लाह और शाहजेब को बरी कर दिया। मकतूला ने जख्मी हालत में वीडियो बयान में मुलजिम मुजाहिदुल्लाह अफरीदी का नाम लिया था। मुजाहिदुल्लाह अफरीदी को KP पुलिस ने इंटरपोल के जरिए UAE से गिरफ्तार किया था। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर केस को कोहाट से पेशावर मुंतकिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची को तजावुजात से पाक करने का ऑपरेशन जारी। महकमा इंसदाद तजावुजात के मुताबिक अलादीन पार्क में भारी मशीनरी से शॉपिंग मॉल और पेविलियन एंड क्लब की इमारत को गिराया जा रहा है। दूसरी तरफ गुज्जर नाले पर बैक वक्त 10 जबकि औरंगी नाले के 6 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। लाहौर के इलाके टाउनशिप में गैर कानूनी काबिजीन के खिलाफ LDA का ऑपरेशन। करोड़ों मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करा ली। पुलिस ने मज़ाहमत पर 23 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक काबिजीन ने सरकारी अराजी पर दुकानें और प्लाजे तामीर कर रखे थे। भारी मशीनरी के जरिए 150 से ज़ायद दुकानें मिसमार कर दी गईं। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम का आगाज। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी का मीरपुर डिवीजन का दौरा। डडियाल में जियालों ने इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। शहर को पार्टी परचमों और इस्तकबालिया बैनर से सजा दिया गया। बिलावल भुट्टो सरदारी कोटली में रैली की सरबराही करेंगे। दुनिया बदल गई, पाकिस्तान की नाकाम तरीन अपोजिशन ना बदली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार कहते हैं इल्ज़ामात बराए इल्ज़ामात की सियासत करके अपोजिशन ने अपनी लुटिया डुबो दी। अवाम की हिमायत से अपोजिशन को हर मौके पर नाकामी का सामना करना पड़ा। अवाम मुस्तरद शुदा टोले को हमेशा के लिए रद्द कर चुके। पाकिस्तान का मुस्तकबिल वज़ीर आज़म इमरान खान जैसी शफाफ और दयानतदार क़यादत से वाबस्ता है। करप्ट माफिया के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है।
सिसिलियन माफिया गॉड फादर्स के अलकाबात पाने वाले नवाज शरीफ अदालत से सनद याफ्ता चोर साबित हुए। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ अदालत से सर्टिफाइड भगोड़े का टाइटल भी अपने नाम कर चुके। मुल्की इदारों और अवाम की आंखों में धूल झोंक कर बीमारी के नाम पर लंदन में पोलो मैच देखने वालों की नौसरबाजी अया हो गई। वक्त ने कप्तान को फिर से सुरखरू किया। करप्ट शाही टब्बर कानून और आइन की रोशनी में मजीद एक्सपोज होगा। नवाज शरीफ का मेरिट पर फैसले लेने का हक बरकरार है। जब डॉक्टर इजाज़त देंगे नवाज शरीफ वापस आएंगे। नून लीग की रहनुमा राना सनाउल्लाह की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं, यहाँ इंसाफ सिर्फ जहांगीर तरीन और जुल्फी बुखारी को मिल सकता है। एक सवाल पर नून लीग की रहनुमा बोले बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं, बजट को रोकने की नहीं एक्सपोज करने की हिकमत अमली होती है। खतरा अभी टला नहीं, जुलाई में कोरोना वबा की चौथी लहर आ सकती है। NCOC के सरबराह असद उमर ने खबरदार कर दिया। असद उमर ने ट्वीट किया, आज मस्नूई जहानत के जरिए वबा के फैलाव का तज्जिया किया गया। SOPs पर अमल दरामद ना होने और वैक्सीन ना लगवाने से जुलाई में चौथी लहर आ सकती है। बराए मेहरबानी SOPs पर अमल दरामद करें और जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं। उधर NCOC ने बैरून मुल्क जाने वालों को फाइजर वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी। मोहलिक वबा मजीद 44 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 1052 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.29% रही। दूसरी जानिब कोरोना के असरात कम होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए औकात कार जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हफ्ते में 6 रोज़ काम करेंगी। अदालतें पीर से हफ्ते तक काम करेंगी। इतवार को हफ्तावार तातील होगी। आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कि ख्वाहिशमंद है और उसका इरादा कल की नशिस्त से भी ये तासुर मिलता है। वो कह रहे हैं कि जो आपने गैर कानूनी और उनकी नज़र में गैर आइनी इक़दाम किए वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं हैं। और वो कह रहे हैं, और यहाँ तक भी बात आई, सुनने में भी आई है, उसका जिक्र भी हुआ कि जो इक़दामात हैं वो चैलेंज हो चुके हैं और इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में उनकी पिटीशन पड़ी है। 2 साल से वहाँ पिटीशन है। ये और बात है कि अभी तक सुनवाई नहीं हुई, उसका फैसला नहीं हुआ। वो मुतरज़ थे तो सुप्रीम कोर्ट गए। अगर उनने फराख दिली से खुशदिली से 5 अगस्त के इक़दामात को कबूल किया होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने की ज़रूरत महसूस न करते। अब वाज़े ये दिखाई दे रहा है कि कल की नशिस्त और इन मुतालबात, जो रिवर्सल का मुतालबा उन्होंने किया, उस पर उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला। ये कहा गया, हाँ स्टेटहुड बहाल कर दिया जाएगा एट एन ऑपर्च्यून टाइम। ये बड़ी वेग बात है, मुबहिम सी बात है। व्हाट इज एन ऑपर्च्यून टाइम? 2 साल तो बीत गए। व्हाट इज एन ऑपर्च्यून टाइम? और यकीनन सवाल ज़हन में उठता है कि मजीद कितनी कश्मीरी जाने का नजराना पेश करना पड़ेगा इस फैसले पर नजरसानी का जो मुतालबा है उसकी अहमियत जतलाने के लिए। बिल्कुल ये बात सामने आई कि वहाँ इस बात का जिक्र भी हुआ कि हमारा तो एतमाद जो है वो उठ गया है और उस एतमाद को बहाल करने के लिए, और एतमाद वाहिद जो तरीका है एतमाद को बहाल करने का वो है फुल रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। ये कहा गया और मैंने सुना, ये जुमला भी सुना, ये भी सामने आया कि
तस्करा हुआ, जिक्र हुआ कि कश्मीरी बहुत गुस्से में है, नाला है, तकलीफ में है, कर्ब में है और अपनी तज़हीक महसूस कर रहे हैं। उनका उनकी जो स्टेट थी जम्मू और कश्मीर की, उसको तो आपने डाउनग्रेड कर दिया टू ए यूनियन टेरिटरी। उसका उनको उनकी गुफ्तगू से ये लगता है कि यकीनन उसकी तकलीफ है और वो चुभन मौजूद है। फिर यहाँ तक बात भी सामने आती है उस नशिस्त से कि ये जो तासुर था कि वहाँ बहुत सरमायाकारी हो जाएगी और बहुत वहाँ खुशहाली आएगी, माशी तौर पर खुशहाली आएगी, हालात उसके बरक्स हैं। बरक्स इस तरह है कि मुतालबा किया गया कॉम्पनसेशन का कि जो 2 सालों में ताजरों का, दीगर तबकात का, किसानों का बाग उजड़ गए। आप देख रहे हैं कि पूरी उनकी कमाई का जरिया जो है वो टूरिज्म है। टूरिज्म की जो इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी की, बर्बाद हो गई। लोगों को बेपनाह माली नुकसान हुआ, ज़हनी अज़ियत के अलावा और जो इंसानी मुश्किलात हैं उसके अलावा जो उनको माली नुकसान हुआ उसका तज़किरा हुआ। यहाँ तक एक साहब ने तो यहाँ तक कहा कि 50% से ज़्यादा जो सनत है वो बंद पड़ी है मकबूजा कश्मीर में। तो ये कौन सा तासुर है कि वहाँ खुशहाली आएगी, और कहाँ खुशहाली आई है? बर्बादी आई है। अब एक और चीज़ जो बड़ी वाज़ेह होकर सामने आती है वो ये है कि 2 सालों का ये अरसा गुजरा है और इन 2 सालों में मुकम्मल मिलिट्री सीज बरकरार रही है। क़यादत न सिर्फ टॉप की, सेकंड लेयर भी और थर्ड टियर भी कैद में है और चार्जेस भी फ्रेम नहीं किए गए। बहुत से लोगों को बंद किया हुआ है, कैद किया हुआ है, नज़रबंद किया हुआ है।